Yeah. So, good evening, everyone. Let's do this, students. SYGC क्रैश को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ऑनेस्टली एंड फॉर श्योर है ना, नहीं पता एग्जैक्टली किस तरह से लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे. बट वन थिंग आई एम प्रीटी श्योर इज कि थोड़ा 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 करके सब कुछ खत्म कर देंगे. एंड बाय द एंड आई एम श्योर यू गाइस विल बी सुपर हैप्पी विद द वे इट वेंट. ओके, चलो. तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, वर्ब्स. है ना, अगर तुम लोग को वर्ब्स ही नहीं आएंगे, कम ऑन पेज नंबर 14. आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन पेज नंबर 14. आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव योर फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक विद यू. You have to take a notebook also. I'm going to make you write a lot of things. Okay, maybe not immediately, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर इसे होते जाएगा. सब वर्कशीट वगैरह दूंगा तो हमें साथ साथ में लिखते भी जाना है काफी सारी चीजें. ठीक है, चलो. ओके, so students, चलो help me फटाफट. ER ending verbs. Tell me what are the endings of ER ending verbs. Tell me. Present tense ER ending verbs के endings क्या है? You can switch on your mic and you can talk to me all the time. ESE, ONS, EZ, ENT. ENT. Perfect. Okay. Chalo. So just give yourself 2 minutes and go through page number 15. I'm going to ask you 1 or 2 questions. I just want you to go through page number 15 and see what is exactly written over there. And देखो आप लोग को सारे verbs आते कि नहीं आते. Give yourself 2 minutes. Okay. So students, I'm assuming you guys have gone through it. Have you seen these are irregular verbs? And हाँ, okay. Irregular verbs, students. Tell me. अच्छा चलो, IR ending के endings बताओ फटाफट से. What are the endings of IR ending verbs? AI, AS, AA. नहीं क्या बोलो बोलो. IR ending के endings क्या होते हैं students? IT, IS, IT, IT. Yeah, continue. ISS, TZ, ISS, TND. ICC, ICC, perfect. Okay. And last RE ending verb, students. एक last RE ending verb भी बता दो. क्या होते हैं endings of RE ending verbs? S, nothing, ONS, EZ, ENT. Very good. S कुछ नहीं. ONS, EZ, ENT. Perfect. Okay. चलो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे पास 11 की टेक्स्ट बुक है ना, बेस्ट है. मतलब मुझे 11 की टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी लगती है. अगर तुम लोग सिर्फ उसमें पेज नंबर 61, पेज नंबर लेट मी जस्ट रिकॉल 74 एंड पेज 131, इन 3 पेज पे ना ये FYGC की टेक्स्ट बुक. तो स्टूडेंट्स, FYGC की टेक्स्ट बुक के अंदर इसमें ना सारे ER एंडिंग के वर्ब्स, R एंडिंग के वर्ब और RE एंडिंग के वर्ब्स दिए हुए, एक्स्ट्रा वर्ब्स भी दिए हुए हैं. सो आई डोंट नो, नहीं तो फिर कुछ नहीं, तो अगर आपके पास PDF भी होगी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक की, यू कैन गो थ्रू दिस थिंग. यू कैन टेक अ बुक and you can just write it down कि ये 3 पेजेस सर ने बोले हैं, and you have to go through those 3 pages. उसमें verbs दिए हुए, काफी सारे extra verbs दिए हुए हैं, and believe me, those verbs are real helpful. Okay, तो अगर आप लोगों को चाहिए, you can go through those pages. ठीक है. चलो, great. Next, after that, students, अभी देखो ये सारे irregular verbs हैं. अच्छा, tell me students, do you have the meaning of each and every verb that is given on this page? Is it written with you or it is not written with you? No, it's not written. It's so तुम लोग, चलो मैं टाइप करता हूँ, तुम मुझे हेल्प करना. ठीक है, सबसे पहले अकेली verb. Tell me what's the meaning of अकेली verb. These are irregular verbs and you should know each and every one of them. बताओ फटाफट. अकेली means to Welcome. To welcome. Perfect. Say next. Alir means to go. To go. Perfect. To go. Next. Our to Have. keep going. Fatafat. Buar means to Drink. Dir means to To say. Dormin means to Sleep. To sleep. Ekril means to Right. Next. Etra means to 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 be. be. Perfect. Next we have fair. Fair means to To do. perfect. To do or to make. Next. Lead means to To read.
Read. To read. Next, Maitra means to To put. Put. put to place to keep. इसे तीन तीन मीनिंग होता है. To put to place to keep. Next, Uvri means to To open. Open. perfect. Ilplavar means to To rain. Puvar means to To Can. be able to can. Prandra means to to take. servir means to. To serve. Serve. Is there any other verb below this? Yes, sir. ओ इतने सारे हैं. शायद मैंने बराबर. ओके नीचे फिर सर्वर के बाद आई एम राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सर्वर के बाद वी हैव सॉर्टे. सॉर्टे मींस टू To go out. और टू कम आउट. इट कैन बी एनीथिंग. ओके व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? सॉर्टे, टू गो आउट, टू कम आउट. फिर वनीर. वनीर मींस टू To come. एंड लास्ट To see. वुआर मींस टू सी. ग्रेट. So we have one more. अच्छा वी हैव वन. ओ माय गॉड. सो सॉरी. उसके बाद वुलुआर वर्ब है ना लास्ट. To want or to wish. या टू विश टू वांट. टू विश टू वांट. चलो आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल और मे बी अ मिनट. चलो बच्चे लोग, आप लोग को सबकी मीनिंग यहाँ पे लिखने पहली बात तो, और आप लोग को सबकी मीनिंग आने चाहिए. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो ईच एंड एवरी. और ये सारे कॉन्जुगेशन ना 11th स्टैंडर्ड के, इसमें कुछ भी 12th का नहीं दिया हुआ है. तो अगर स्टूडेंट्स तुम लोग को ये सारे वर्ब्स नहीं आएंगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज. सो मेक श्योर इतने सारे वर्ब्स तुम लोग एकदम अच्छे से कर लो. I can see few faces because they have kept their video on. चलो बच्चे लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू गाइस हैव टू कीप योर वीडियो ऑन. देखो मेरा प्लान एकदम सिंपल है. मैं जब क्लास इंटरैक्टिव रखूंगा, आई एम गोइंग टू टेक ओरल्स एंड एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू टेक आउट ओनली दोस नेम्स हु हैव केप्ट देयर वीडियो ऑन. चलो ठीक है. आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ मिनट. स्टूडेंट्स ये सारे वर्ब्स अभी देखो, मेरा प्लान क्या है ना, मेरा प्लान एकदम श्योर है. नेक्स्ट लेक्चर में whenever we have next lecture, I guess we will have our next lecture day after tomorrow and not tomorrow. Okay, so today is I guess Wednesday. Fine, तो हम Friday को next lecture रखेंगे. And जब भी next lecture रहेगा, I'm going to take your oral. Okay, how am I going to take your oral? I'm going to tell you exactly. I'm going to ask you to switch on your video, keep your eyes on your, नहीं, keep your hands on your eyes, and then I'm going to ask you questions. आप लोग को ट्रांसलेशन आना चाहिए. हेलो सोहिनी. Hi, sir. हाय सोहिनी, व्हाट्स अप? I'm लॉन्ग good, टाइम sir. नो How are सी. you? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट. कहाँ पर, यहाँ पर है या कहाँ पर है? यहीं पर हूँ, sir. ओह नाइस, नाइस टू सी यू. Yeah. चलो स्टूडेंट्स, डन. ओके, यस बेटा बोलो. ओरल्स जो रहेंगे वो ये वर्ब्स के ही रह गया और वर्ब्स रहने वाले हैं उसमें. नहीं, फिलहाल प्लान सिर्फ पेज नंबर 15 का है, दैट्स इट, और कोई भी नहीं ओके सर. है ना. स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 इज इटसेल्फ अ लॉट ऑफ वर्ब्स एंड दैट्स व्हाई. तो फिर वो बहुत ज्यादा वर्ब्स एक साथ में, काफी सारे वर्ब्स हैं, तो फिर उतने फिलहाल कर लो, वो भी अपने लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इट्स मोर देन इनफ. ओके, और Sir, वो वर्ब्स Yes, sir. क्या हुआ, क्या with conjugations आप पूछेंगे क्या? यस यस. देखो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को. नहीं, ऑब्वियसली विद कॉन्जुगेशंस, खाली मीनिंग तो नहीं. देखो यू कैन सी मी राइट. तो देखो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू कीप योर हैंड्स ऑन योर फेस एंड देन यू कैन. अब तुम लोग मुझे कोई भी वर्ब पूछो रैंडमली, कोई भी वर्ब पूछो. कम ऑन, आस्क मी समथिंग. मैं पढ़ के आया हूँ आज ही. अच्छा देखो फॉर एग्जांपल तुम लोग पूछ रहे हो वनीर वर्ब, तो VINS VINS VINT VINT VNONS VNEZ VINNENT VINNENT. ओके, तो कोई भी रैंडम वर्ब तुम लोग मुझे दोगे वुलुआर, तो VEUX VUX VUT VUT VOULNS VOULEZ VEULENT VULENT. तो मैं तुम लोग को ऐसे वर्ब पूछूंगा, यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज एंड यू हैव टू टेल मी द वर्ब. इज दैट ओके? तुम लोग को मुझे सिर्फ स्पेलिंग्स बतानी है फिलहाल, बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑल प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द रिटन एग्जाम. आप लोग को रिटर्न देखो प्रेजेंट टेंस अगर तुम लोग को नहीं आ रहा है, because after this we have future tense, we have past tense, we have imperfect, we have present conditional, we have future tense, बहुत सारी चीजें, past tense है. तो प्रेजेंट टेंस तो सबसे बेसिक है. अगर बच्चे लोग आप लोग को प्रेजेंट टेंस नहीं आता तो चुल्लू भर पानी ले लो और फिर देख लो क्या करना है जीवन में, है ना. तो स्टूडेंट्स प्लीज यू गाइस हैव टू लर्न दिस पार्ट वेरी thoroughly and make sure after that you come to the class. If not me, I have a staff, she's also very smart and talented. I'm going to ask her to take the lecture. मतलब not entire lecture, obviously I'm going to take the lecture, but orals I'm going to ask her, she's going to take your oral and I get to know exactly किसने किसने आंसर दिया, किसने आंसर नहीं दिया. There's a high possibility if I take a name also. Imagine if I take a name and the person doesn't open your mic or doesn't open your video also, then I'm going to remove that person out. फिर खाली अंदर रह के कोई मतलब नहीं है, ठीक है. चलो
That's it. I'm going to rub everything that is written on the screen and we're going to move forward, students. We're going to move forward now. So students, आज हम लोग सिर्फ present tense पे concentrate कर रहे हैं. I'm not taking any other verbs for the time being. And give me a minute. I'm going to open a worksheet. So उसके अंदर थोड़े बहुत verbs दिए हुए. You have to help me out, okay? Just a minute. You can see my screen, right? Yes, sir. Okay, great. One second. Yes. Let's do this, students. Question number 5, you can see on my screen. If you can see on my screen, question number 5. Starting with the first one, you have to help me with the answers, okay? Help me with the answers. On the left hand side, if you can see, we're going to start with L prawn latrine. चलो फटाफट तुम लोग को मुझे सिर्फ स्पेलिंग बताते जाना है, ठीक है? प्रॉन वो अभी मुझे बताओ क्या स्पेलिंग क्या आएगी? L prawn स्पेलिंग बोलो. PREND. या PREND. स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग ने मेरे YouTube पे वीडियोस भी देखे होंगे ना स्टूडेंट्स, मेरी आदत है, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, आई मेक श्योर दैट आई आस्क द इंग्लिश ट्रांसलेशन आल्सो. सो कोई भी भले सेंटेंस हो स्टूडेंट्स, सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों को आना चाहिए कंपल्सरीली, ठीक है? देखो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, मे बी आफ्टरवर्ड्स आई विल शेयर वन वर्कशीट विद यू गाइस. तो आप लोगों को वर्कशीट रखना, मैं आप लोगों को रोज होमवर्क दूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत होमवर्क सबमिट असाइन करके मेरे को सबमिट करना, ठीक है? तो आप पास थोड़ा बहुत काम रहेगा, मैं कंपल्सरी कुछ नहीं रखूंगा, बिकॉज मे बी यू गाइस हैव योर ओन प्रीलिम एग्जाम और अदर स्टफ, बट आई एम गोइंग टू डू माय वर्क व्हाटएवर इज नीडेड एंड देन आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू द सेम. चलो नेक्स्ट, पियर रवनीर. बताओ स्पेलिंग बताओ. अगर हमको वनीर वर्ब आता है तो हम रवनीर वर्ब भी कर सकते हैं. मीनिंग स्पेलिंग बताओ, क्या स्पेलिंग आएगी? REVIENT. तो स्टूडेंट देखो, वनीर का कॉन्जुगेशन क्या था? VIENT. तो रवनीर है ना, वनीर का भाई है, तो वनीर VIENT, तो रवनीर RVN हो जाएगा. RVN REVIENT. मीनिंग बताओ सेकंड वन. टेल मी द मीनिंग. Peter returned from Paris. Pierre come back. Ravan is to come back. Okay, so Pierre comes back from Paris. Second one, uvrir verb. चलो uvrir, students, can you tell me uvrir कैसा verb है? एक आया verb. ER verb. It will be conjugated. गद्दार verb. या गद्दार वर्ब से, मैंने गद्दार वर्ब पढ़ाया भी ऐसा. तो स्टूडेंट्स है ना, गद्दार वर्ब मतलब उवरीर एक आयर एंडिंग वर्ब है, लेकिन उसमें लास्ट में ER की एंडिंग्स लगते हैं. सो OUVRES, उव्र. ओके, इट्स आयर एंडिंग वर्ब, बट आप लोग को IR को ड्रॉप करके ER के एंडिंग्स डालने हैं. अभी हमने जस्ट ER के एंडिंग्स देखे, ESE, ONS, EZ, ENT, ENT. फाइन. चलो ग्रेट. नेक्स्ट, फोर्थ वन. स्टूडेंट्स, appellate verb is again an exception. Tell me the spelling. 11th स्टैंडर्ड में है ये भी. स्पेलिंग बोलो. इल. Tell me the spelling. Come on, tell me the spelling, students. नहीं आ रहा है तुम लोग को? इसमें डबल एल आता है, EPPE. इट्स अ रेगुलर ER एंडिंग वर्ब, तो उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है APPELLE है. APPELLE. नेक्स्ट आफ्टर दैट, फिफ्थ वन, देयर एतुदियो. आप्रोंद्र. तो आप्रोंद्र स्टूडेंट्स किसका भाई है? प्रोंद्र जैसा है. प्रोंद्र अभी हमने जस्ट पेज नंबर 15 पे देखो, अगर हमने प्रोंद्र का कॉन्जुगेशन देखा था, तो स्टूडेंट्स देखो अभी लेस एतुदियो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म. तो इल्स फॉर्म का कॉन्जुगेशन डालेंगे. इल्स फॉर्म में APPRENNENT. आप्रेन आ जाएगा, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, गिव योरसेल्फ 2 मिनट्स और आगे के 3-4 बातें सॉल्व करो फटाफट से. पेंसिल से इसको चाहिए आप लोग बुक में लिखो, मैं आप लोग को जब पूछूंगा देन बी फास्ट टू आंसर. ओके, 2 मिनट्स. Sir, यस. sir, would you please recite the translation of each sentence which you have solved, just to correct whether we have translated it correctly or not? Yeah, give me just 2 minutes. I'll do that. So for the 8th one, do we need to conjugate it as ils or is it only ill? Ils form, ILS, ils form.
Okay. So let's start question number 5 ka first. She is taking the train. Somebody told me to do the English translation. She's taking the train. Second, Pierre is coming back from Paris. Third is you open the door. You open the door. Fourth, he calls the waiter of the restaurant. Le garçon. Garçon over here means the waiter. He calls the waiter of the restaurant. Next, the students learn French. The students learn French. So students 6 to 1, tell me the answer directly now. Okay? You guys have to be fast. Yeah. DIS है ना? Dit you la verite. Meaning बताते जाओ students, साथ साथ में meaning बताते जाओ चलो. To say. To say. हाँ, धीर means to say होता है, तो मतलब ये क्या है? Do you say the truth? Do you say the truth? Second. Next one, 7th one. Students answer बताओ. No form answer. FAISONS. Very good. FAISONS. Nu faisons notre devoir. Meaning बताओ. We No. do our homework. We do our homework. Perfect. Very good. 8th one. Students अभी देखो 8 में ना ले दिया, LES दिया, प्लूरल है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म अज्यूम करेंगे. ले दुपो मतलब जैसे ना द खुरानास, द खन्नास, किसी का सरनेम है. अब वो लोग ने LES दिया तो हम उसको प्लूरल फॉर्म ही कंसिडर करेंगे. पार्थिव वर्ब है. टेल मी स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स पार्थिव वर्ब की? Patent. या परफेक्ट. PARTENT. PRTENT. Nice. Next after that, il ne reuse. अच्छा तो the les Dupont मतलब नाम है किसी का. Okay, the Dupont leave for Canada. The Dupont leave for Canada. 9th one, ill form. It's a regular IR ending verb. Tell me the spelling. Sir, Parthir is IR ending verb, right? मतलब पार्थी is an exception. It is not a regular. It's an IR ending verb. Obviously उसके लास्ट में IR है, पर बेटा वो exception है. Okay. आप कैसे हैं उसका क्या बोलते हैं उसके कॉन्जुगेशन है आपके पास लिखे हुए? आपको चाहिए तो मुझे Yes, याद sir. दिला. हाँ ठीक है. Il ne réussit pas aux examens. Sir, can you please give us the list of the irregular verbs? List of irregular verbs, right? Yeah, I'll do that. Thank you. Yeah, तो आप क्या करो ना, irregular verbs की लिस्ट चाहिए ना आपको. ठीक है, मैं फोटो है मेरे पास. I'll just send you the photos. ठीक है, later on. सर पार्थिव के ये बताओ ना conjugations. मेरा पार्थिव का कॉन्जुगेशन ना, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मेरे पास है फिलहाल. लेट मी ओपन अ वर्ड फाइल. आपको पार्थिव चाहिए, राइट? PARTIR. Just 1 second. Yes. Can you see them on the screen? ये पार्थिव वर्ब है. पार्थिव मीन्स टू लीव, wanted to lie, wanted to smell. ये सब एक जैसे कॉन्जुगेट होते हैं. If you want, you can take a screenshot. सबका मीनिंग भी लिखे हुए हैं. थैंक यू सर. सर आप एक्सेप्शंस जो है वर्ब्स, एक्सेप्शनल वर्ब्स, उसका लिस्ट भेज सकते हो क्या? Yeah, I already have a photo. I'll send you by the end. Wait 1 second. ना एक खाली एक सेकंड चालू रखना. मेरे पास जो लिस्ट है मैंने थोड़े दिन पहले 1-2 ग्रुप में भी डाली थी. Let me just find them out. Just give me 1 minute. Just 1 second. एक second. मुझे मिल गया है, मुझे सिर्फ एक सेकंड दो, मैं सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. Sir, where are you sending that? No idea.
मैं वही देख रहा हूँ कि मैं कहाँ सेंड कर सकूँ। एक ना खाली क्रैश, मैंने जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया ना मैं उसमें सेंड कर रहा हूँ। दिस इज 20 to 23 बैच राइट? ओके देखो आई एम सेंडिंग फोटोज, अगर किसी को अगर नहीं मिला ना तो तुम लोग समझ जाना, तुम लोग को मैंने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड नहीं किया है। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप ऐसे नहीं आता इसमें। हाँ, सिर्फ एक से ना, ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट इट डन। लास्ट 1 मिनट हो जाएगा। देयर आर 3 फोटोज, उसके अंदर मोस्टली थोड़े बहुत तो है ही है। और उस देखो अभी है ना काफी सारे रेगुलर वर्ब्स ऐसे भी है जिसको जो है ना मतलब जैसे प्रॉन्द्र है तो प्रॉन्द्र का कॉम्प्रॉन्द्र और अप्रॉन्द्र भी दोनों होता है, तो वैसे सब भी है ऐसे तो इसमें मोस्टली जो सारे वर्ब्स है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा थोड़े बहुत और भी वर्ड्स अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं सेंड कर लूंगा। देखो आई हैव सेंट यू आई गेस ऑल ऑफ यू, मैंने जितने लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में फिलहाल ऐड किया है उन सबको रिसीव होगा। अगर आप लोग ने मेरा नंबर सेव किया तो आपको रिसीव हो जाएगा। इफ यू हैवंट सेव्ड माय नंबर देन आई डोंट नो। और अगर किसी को नहीं रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स, वो लोग ने इंटरनेट ऑन रखा है फिर भी रिसीव नहीं हुआ है, तो जस्ट ड्रॉप मी हाई ऑन व्हाट्सएप, आई विल ऐड यू गाइस ऑन द। अरे प्लीज कुछ मैसेज मत करो, रिप्लाई कुछ भी मत करो। हाँ तो फिर तो अगर किसी को नहीं मिला है स्टूडेंट्स तो यू कैन ड्रॉप मी हाई लेटर ऑन, मैं आफ्टर द लेक्चर में आप लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग ने अभी अभी एकदम रिसेंटली कुछ लास्ट आधे घंटे में जिन्होंने थोड़े बहुत लोगों ने पेमेंट किया था उनका मैंने शायद नहीं ऐड किया है, तो फिर यस। हेलो स्नेहा, यू देयर स्नेहा? हेलो स्नेहा, चलो ठीक है। मिला सबको स्टूडेंट्स? मैसेज मिला? ऋषभ यू गॉट द मैसेज? यस सर। ग्रेट, चलो ठीक है। जिसको नहीं मैसेज मिला वो लोग मुझे सिर्फ हाई ड्रॉप कर सकते हो, तो मे बी आई हैवंट सेंड यू, आई हैवंट एडेड यू इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप सो फार। ठीक है। और सिंपल एकदम स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ ऑफिशियल मैसेज करूँ तो कुछ भी रिएक्ट भी मत करना, कुछ रिप्लाई मत करना उसके ऊपर, ठीक है? नहीं तो इतने सारे मैसेज हो जाएंगे, पूरा कंटा हो जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स लेट्स गो बैक वेयर वी वर नाउ। आज हम लोग को प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करना अच्छे से, काफी सारा। आप विद द एक्सरसाइज 10th वन, टेल मी द स्पेलिंग, क्या आएगा? Say SAIT. SAIT। स्टूडेंट्स कोई बता सकता है? कपड़े और चेंज कर दो, कपड़े चेंज नहीं किया, ठीक है ना सर? SAIT मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स, 10th वन मीनिंग। To know a fact. या तो खाली सावुआर का मतलब स्टूडेंट्स टू नो होता है, अगर आप लोग को पता होगा सावुआर चलेगा, ठीक है? सावुआर वर्ब हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में भी है। टेल मी मीनिंग बताओ डायरेक्टली, 10th सेंटेंस का मीनिंग बताओ। He knows all the responses. Where he knows all the answers, okay? He knows Sir, all the even answers. savoir is an exception. Yeah, savoir is an exception. It's in your 12th standard book. आएगा वो, हम लोग जैसे से अभी आगे बढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में तो मैं आपको कराऊंगा। बट यस, सावर इज एन एक्सेप्शन ऑफ कोर्स। सावर, कोनेत्रो, ये सब काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। इनफैक्ट Sir, 6th चैप्टर के लास्ट तक है काफी सारे एक्सेप्शंस, मतलब 12th स्टैंडर्ड की बुक में 6th चैप्टर तक। 11th वन, टेल मी द वर्ड का कॉन्जुगेशन क्या आएगा? can you repeat the translation for the ninth one? You want to repeat the translation of The ninth one. 9th one? You want me to repeat it? Yes, sir. In the Reusi Pau's exam, Reusi मतलब to succeed होता है, he does not succeed in the exams. He does not succeed, present tense, he does not succeed in the exams. 11th one, or the verb, right? So the word spelling बताओ स्टूडेंट्स क्या आएगी? DOIT। Very good, DOIT, okay. Meaning बताओ the word पूरा और हुआ être calm. To have to or to must. या to have to या to must. पूरा मीनिंग बताओ बेटा। One must be calm.
One must be calm. Perfect. One must be calm. Or one has to be calm. One has to be calm. 12th one. It's a YER ending verb. Envoy, again an exception, students. I guess ये YER ending verb पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है. पेज नंबर 14 था ना, पेज नंबर 15 पे. Tell me क्या आएगा, स्पेलिंग बताओ डायरेक्टली. Envoy. Spelling. ENVOIE. 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 देखो स्टूडेंट्स, यू गाइस हैव टू आंसर, ओके एवरीवन. देखो तुम लोग को दिख रहा है मेरे पास ये मोबाइल फोन है, और मेरे मोबाइल फोन के अंदर ना सबके नाम्स आते रहते हैं जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं. सो आई एम कीपिंग एन आई ऑन द नेम्स आल्सो, जो ऊपर फ्लैश होता है ना, जो लोग माइक ऑन करके बात कर रहे हैं. सो आई गेट टू नो हु गाइस आर टॉकिंग टू मी कंटिन्यूअसली एंड हु आर नॉट टॉकिंग टू मी. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने लोगों ने वीडियो ऑन भी रखा है, कितने लोगों ने वीडियो नहीं भी ऑन रखा है. फाइन. ओह चलो ठीक है. सो आई एम डन विद 12 What do में. you mean by the war? बेटा the war is a verb to, oh, the war means to have to, फिर have to must, या to owe भी होता है, या should भी बोलते हैं काफी बार. The war means to have to owe to must. बराबर. किसी ने तो पूछा है, स्टूडेंट श्रेयस ने पूछा, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ वर्ब इज अ रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब. बेटा देखो, इररेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है, आपको सारे इररेगुलर वर्ब्स आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं. जितना भी 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, उन्होंने सारा का सारा कहाँ पे डाल दिया है, उन्होंने ये सारा का सारा पेज नंबर 14 पे डाल दिया है. ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन यू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर, आपके सामने कुछ कुछ इररेगुलर वर्ब्स आते जाएंगे. तो आपको इररेगुलर वर्ब्स के कॉन्जुगेशंस लर्न करने हैं, बिकॉज उसमें जरा भी दिमाग नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू रट्टाफाई देम, यू अंडरस्टैंड. तो उसको रट्टा मारना है. उसके अलावा जो बच गए वो सब इररेगुलर वर्ब्स. बराबर. ग्रेट. चलो लेट्स गो फॉर फ्यू मोर. What are semi-regular verbs? ओह नाइस क्वेश्चन. सेमी रेगुलर, बेटा वो पेज नंबर 15 पे जो दिया है ना, वो सेमी रेगुलर वर्ब्स ही है. देखो ये तो कंप्लीट, देखो कंप्लीटली इररेगुलर वर्ब का तो एकदम विचित्र होते, विचित्र, कुछ समझ में ही नहीं आता है. तो हमको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हम लोग को उसको लर्न करना पड़ता है. देयर इज नो कॉमन पैटर्न, यू अंडरस्टैंड. एत्र, अभी एत्र देख लो, SUIS ES EST, कुछ कॉमन पैटर्न ही नहीं है. ठीक है, उनको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है. जस्ट लाइक गर्ल्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, बट स्टूडेंट सेमी रेगुलर वर्ब्स कैसे है ना, थोड़े से रेगुलर है. देखो पेज नंबर 15 पे आ जाओ. पेज नंबर 15 पे सेमी रेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं. अब सेमी रेगुलर वर्ब्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, ER एंडिंग वर्ब्स है. ER एंडिंग वर्ब्स, तो देखो सबके एंडिंग्स तो सेम है, ES EE ONS EZ ENT NT. तो सेमी रेगुलर वर्ब स्टूडेंट्स क्या है, ना ही कंप्लीटली रेगुलर है और ना ही कंप्लीटली इरेगुलर, वो कहीं ना कहीं बीच के है ना. मतलब थोड़ा सा इरेगुलरिटीज है, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं है. तो स्टूडेंट्स, तो तुम लोग ES EE ONS EZ ENT NT. लेकिन देखो अभी GER में देखो खाली नू में क्या आता है, EONS आता है, छोटा सा इरेगुलर है. कमर्शियल वर्ब में देखो सी सडिल आता है, नू फॉर्म में सी सडिल आता है. अब ये जो आशिदेर वर्ब है, आशिदेर वर्ब, उसमें क्या हो रहा है, नू और वू को छोड़ के बाकी सब में ई ग्राव होता है. देखो फर्स्ट जो ई है वो नू और वू को छोड़ के बाकी सब में ई ग्राव है. बराबर. अब ये वाईआर एंडिंग जो वर्ब है ना, वाईआर एंडिंग वर्ब स्टूडेंट्स, वो भी देखो वाईआर एंडिंग वर्ब का क्या बताएगा, नू और वू को छोड़ के, नू एंड वू को छोड़ के बाकी सब में स्टूडेंट्स क्या है, बाकी सब में लेटर वाई चेंजेस टू लेटर आई, है ना. तो नू और वू को छोड़ के बाकी सब में सेमी रेगुलर वर्ब्स के भी देयर इज लिस्ट. क्या क्या सेमी रेगुलर वर्ब्स के भी लिस्ट है, प्लेलिस्ट. बेटा सेमी रेगुलर वर्ब्स है ना, सेमी रेगुलर वर्ब्स, लिस्ट. हाँ बेटा सेमी रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है. देखो ये तो अपने 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है. बराबर. ये जो पेज नंबर 15 पे, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ. FIGC, लेट मी जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक ऑफ FIGC, है ना. FIGC के ना चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 114, समवेयर नियर 114 पेज नंबर. अभी जस्ट मैंने बच्चों को पढ़ाया था. बट अभी ये जो सेमी रेगुलर वर्ब्स है ना, वो GER एंडिंग वर्ब्स होते हैं. तो देखो उन्होंने हमको पहले GER एंडिंग वर्ब एक्सप्लेन किया, पेज नंबर 114, ये ना 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमें पेज 114 पे दिया हुआ है. आफ्टर दैट इफ यू कैन सी ओवर हियर, उन्होंने देखो GER एंडिंग के इतने सारे वर्ब्स दिए हम लोग को कि ये सब भी GER एंडिंग जैसे ही होते हैं. नाजेर,
नाजेर है, वोयाजेर है, पार्ताजेर है, शौशेर है, शाजेर है। और फिर CER एंडिंग वर्ब्स की लिस्ट दी है। CER एंडिंग वर्ब्स के जो लिस्ट है, रोमप्ला से, इफा से, आनो से। तो उन्होंने हमको बता दिया है, उन्होंने हमको क्या बताया था, GER एंडिंग सेमी रेगुलर वर्ब है, CER एंडिंग रेगुलर सेमी रेगुलर वर्ब है, E कॉन्सोनेंट ER सेमी रेगुलर वर्ब है, YER एंडिंग सेमी रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो बेटा बाद में उनके थोड़े बहुत जो सिमिलर पैटर्न वाले एग्जांपल उन्होंने दिए वो यहाँ पे, तो आपको मीनिंग लर्न करना है, आपको समझ जाने का। वोयाजर वो भी GER एंडिंग वर्ब है, तो GER एंडिंग वर्ब में क्या होता है, न्यू फॉर्म में GEONS होता है। समझ आया कुछ कुछ? तो बेटा आपको देखो, मैं ना क्या करता हूँ बताया, अपने 12th के बच्चों के साथ ऐसा करता हूँ। आई हैव अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स वेयर आई स्टे इन भाईंदर रिट्स इन मुंबई। ओके, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, वहां पर आई हैव अ बैच रनिंग ऑलरेडी, 30 स्टूडेंट्स का बैच है। उन बच्चों को मैं अप्रैल के महीने से फ्रेंच पढ़ा रहा हूँ, एंड दे आर सुपर गुड विद फ्रेंच नाउ। तो उन लोग को लेजिट अभी उन लोग को मैंने बताया कि 11th और 12th की नई टेक्स्ट बुक खरीदो। मुझे तो अगर 11th और 12th की नई टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा उनका, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 210 या 220 रुपया लगने वाला, उससे ज्यादा उसका नहीं लगने वाला। ठीक है, नाउ 220 to 10 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दोस पीपल। ठीक है, 210 220 तो डोमिनोज भी चलेगा तो तुम्हारा खर्चा हो जाए। अब आई हैव गिवन देम होमवर्क, उनका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका, हमारी प्रीलिम एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी है, एंड दे वर क्वाइट कंफ्यूज कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको मैंने नई टेक्स्ट बुक खरीदने को बोली है, एंड दिस पीपल आर गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी एक्सरसाइज अगेन विद द पेंसिल इन द टेक्स्ट बुक, right from 11th standard first chapter to 12th standard 6th chapter. They're going to write everything one time. So you see how this is how it goes. With the language you need a lot of practice and you need a lot of written practice. तुम सब बच्चों का एक और प्रॉब्लम क्या है ना, तुम सब लेकर बैठ जाओ फ्रेंच और तुम लोग लर्न कर जाते हो, तुम लोग फिर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते। यू हैव योर 80 मार्क्स रिटर्न एग्जाम, सो योर मेजर कंसंट्रेशन, योर 80% ऑफ योर स्टडीज हैज टू बी रिटन कंपल्सरीली, इवन इफ इट इज जस्ट क्वेश्चन यू हैव टू कीप राइटिंग, बिकॉज क्या होता है तुम्हारा फ्रेंच लिखने का प्रैक्टिस बैठता है। अब तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग पढ़ के चले जाते हो, फिर एग्जाम में जाके यू टेंड टू फॉरगेट द स्पेलिंग्स। ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि यार ये स्पेलिंग पढ़ा था अब, लेकिन अब कंफ्यूज होकर मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ बिकॉज तुम लोग ने रिटन प्रैक्टिस नहीं की हुई है। हैव यू गिवन योर एग्जाम्स ऑफ योर हिंदी एंड मराठी, रिमेंबर दोस डेज? नॉट दोस डेज, तुम्हारे लिए तो अभी रिसेंट ही होगा। मैं जब है ना हिंदी मराठी पढ़ के भी चला जाता है, बट देन आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट कंफ्यूज विद द मात्रा, वो मी ये साइड आता है ये साइड आता है, एंड वो बहुत प्रॉब्लम होती थी विद द काना मात्रा एंड स्टफ। तो स्टूडेंट्स क्योंकि वो मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं करता था हिंदी मराठी वगैरह बहुत कुछ, तो योर हिंदी मराठी एंड योर फ्रेंच इज ऑल सिमिलर, दोस आर लैंग्वेजेस, यू डोंट गिव अटेंशन टू द लैंग्वेजेस, यू फॉरगेट लैंग्वेज। तो स्पेलिंग्स कंफ्यूज, तुमको पता है मैं आज भी कंफ्यूज होता हूँ। डॉन्स, फ्रेंच में जो डॉन्स है और इंग्लिश में डांस है, तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ बिकॉज दिस आर टू सिमिलर स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट। फ्रेंच में DANSE और फ्रेंच इंग्लिश में DNCE है, और ऐसे बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स है जो है ना फ्रेंच और इंग्लिश में एकदम कॉमन दिखते हैं। जैसे ऑटम, ऑटम तो मुझे आज भी याद नहीं रहता, ये ऑटम एक है और एक ऑटम ये है आई गेस, मुझे अभी भी नहीं पता ये फ्रेंच, आई गेस फ्रेंच वाला सेकंड वाला फ्रेंच है, फर्स्ट वाला इंग्लिश है, पता नहीं मैंने राइट स्पेलिंग भी लिखी। तो आई गेट कंफ्यूज विद सच सिमिलर स्पेलिंग्स, आई डोंट नो इफ दिस हैपेंस विद यू गाइस और नॉट। तो बहुत सारी चीजें ना, जैसे ये ना ये वेब में मैं ये CEUILLIR नहीं, ये कैलीर है, या तो ये EUI बहुत ज्यादा होता है ना, तो भी मैं कंफ्यूज होता हूँ यार ई पहले आएगा या आई बाद में आएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कुछ ऐसे काफी सारे वर्ड्स है, दोस द प्रोनाउंसिएशन, कैलीर वर्ब है, मैं प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छा कर लेता हूँ, बट माय प्रोनाउंसिएशन डजंट गो विद द स्पेलिंग्स, तो इतना माथा पटक लूं ना फिर भी मुझे लर्न ही नहीं होता है। तो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टूडेंट्स, यू नीड टू डू रिटन प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू जस्ट कम आउट ऑफ इट। अब वो बच्चे लोग मैं बता रहा हूँ जो बच्चे अप्रैल से मेरे पास पढ़ रहे हैं, वो अभी पूरा टेक्स्ट बुक वापस करेंगे, वो लोग बच्चे लोग हैं जो रियल में एकदम 100 ला सकते हैं एकदम ही, क्योंकि उन्होंने साल भर फ्रेंच पढ़ा भी है। नाउ विद यू गाइस यू हैव टू मेक श्योर, देखो 95 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पास ऐसे बच्चे हर साल आते हैं जो जनवरी में मुझे ज्वाइन करते हैं, एंड देन आई टीच देम जनवरी एंड फरवरी, वी जस्ट हार्डली गेट 50 days, नॉट मोर देन दैट। तो बच्चों तुम्हारा काम यही होना चाहिए, देखो कंसिडर दिस एंटायर फ्रेंच कोर्स एज अ रिवीजन, एंड एक साइड में तुम लोग अपनी पढ़ाई चालू रखो, रिटन प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर्स लर्निंग, राइटिंग स्किल्स जो थोड़ा बहुत लर्न करना है सब लर्न करते जाओ। तो 95 प्लस लाना तो कहीं भी दूर नहीं है, 100 और 100 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बट 95 प्लस लाना कोई मेहनत वाला काम नहीं है यार, एकदम बच्चे लोग ला सकते हैं इजीली। चलो ठीक है, तो ये सेमी रेगुलर वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, और सेमी रेगुलर वो अब ये पेज नंबर 15 पे है आपके पास। आप लोगों को अगेन सारे वर्ड्स, students help me with the meaning over here. Manger, what's the meaning of manger? Manger means to Eat. To eat. Mountains to eat. commencer means to begin. To commence. Again. to start or begin. Ashita means to Goodbye. Bye. prefer is to Prefer. prefer, and last onward is to To send. Send. To send. perfect, to send. Great.
ठीक है, तो आप लोग को मीनिंग आना चाहिए, हर चीज का मीनिंग आना चाहिए। जब मैं 11th के बच्चों को भी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, नॉर्मल सेंटेंसेस भी पढ़ाता हूँ, तो भी उन लोगों को हर चीज की मीनिंग पूछते रहता हूँ। तो मीनिंग अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे से अगर तुम लोग पढ़ते जाओगे तो योर फ्रेंड्स विल गेट रियली वेरी कंफर्टेबल फॉर यू गाइस। चलो और थोड़े बहुत सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, देन वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। नहीं, हमने 12 कंप्लीट किया था ना, हेल्प मी विद द 13th वन। choice and तो यहाँ पे श्वासिर वर्ब दिया ना, तो लेस ऑन फॉर श्वासिर, इट्स आईआर एंडिंग वर्ब स्टूडेंट्स, तो CHOIS। टेल मी स्पेलिंग, लास्ट में क्या आएगा? ENT. इट्स आईआर एंडिंग वर्ब। ISSENT. Very good. ISSENT आएगा. You have to drop IR and then you have to put ISSENT. Shwazi. The children choose their gifts. The children choose their gifts. 14th one. Knows army. Plural है ना students, तो ILS form आएगा. ILS form. ILS ILS form. Tell me क्या आएगा conjugation? Sort the verb का ILS form में conjugation क्या था? Sort and Yeah. Sort. SORTENT. Fine. And meaning बताओ students. 14th one. Come on. No, Sami, our friends does not go out today. Our friends, it come shortened? बेटा नो सामी है ना, आर फ्रेंड्स मतलब वो धे हो गया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे अगर नो सामी है? तो वी आर नॉट गोइंग आउट बोलोगे या दे आर नॉट गोइंग आउट बोलोगे इंग्लिश में? आर फ्रेंड्स आर। How did we conjugate it with? Yeah. ending verb or IR or RE? बेटा सॉर्टेर इज एन एक्सेप्शन, अभी जस्ट हमने देखा था सॉर्टेर। अगेन 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज 98 पे दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। सॉर्टेर SORTENT। Okay. ये देखो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे निकाला था ना पार्थिव वर्ब, पार्थिव के आजू बाजू में होना चाहिए क्योंकि पार्थिव जैसे ही कॉन्जुगेट होता है वो भी। हो गया, पता नहीं इसमें नहीं मिल रहा है फिलहाल। लेट मी जस्ट फाइंड SORTER। हाँ देखो, यू कैन यू सी देम ऑन द स्क्रीन? सॉर्टेर Yes, ये भी sir. एक्सेप्शन है। सॉर्टेर दौर में ये सब कुछ पार्थिव की तरह कॉन्जुगेट होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, चलो गोइंग बैक नेक्स्ट आफ्टर दैट 15th one, vouloir verb in Q form. Tell me the spelling. Veux. VEUX. Ver. Perfect beta. Ver tu du cafe. VEUX. Ver tu du cafe means do you want some coffee? Do you want some coffee? 16th one, pouvoir verb. Tell me ils form में क्या होगा, spelling बताओ. Puvent. Perfect. Perv. PEUVND. Perv. Il, perv, venir, chez moi. Meaning बताओ. स्टूडेंट्स देखो इतने सारे बच्चे लोग हैं, आई कैन हार्डली सी 5 to 6 नेम्स कमिंग अप अगेन एंड अगेन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट एन एफर्ट्स। आपके सामने टेक्स्ट बुक भी आप कॉपी भी करोगे, मुझे नहीं समझ में आएगा, बट कम ऑन यू गाइस हैव टू लर्न टू स्पीक। कम ऑन, स्विच ऑन योर वीडियो माइक एंड टॉक टू मी बिंदास, है ना? बिंदास माइक ऑन करो, एकदम बात करो, एकदम टेक इट चिल पिल। टेल मी क्या आएगा 16th one, गो फॉर इट। रॉन्ग तो रॉन्ग। They can come at my They home. can come at my Perfect. They can come at my place. at my place. Perfect. They can come at my place. ये ना शे वर्ड है, CHEZ। ये क्या यहाँ पे बीच में वर्ड है एक्स का ना, CHEZ। यस, नेक्स्ट 17th सर ये one, वर्ब भी एक्सेप्शन है। pouvoir verb। यस बेटा pouvoir verb दिया है पेज 14 पे एकदम लास्ट। यस बेटा एक्सेप्शन है pouvoir verb, पेज 14 यू कैन। नेक्स्ट écrire verb, टेल मी। Écrire. Agreed. Yes, yeah, right. Écrit. Elle écrit. So she writes a beautiful article. She writes a beautiful article. Great. किसी के घर तो कोई आया है। 18th one. Come on. Pleuvoir verb. Go for it. PLE. A lot. Pleu. Yeah, it rains a lot. Perfect. Pleuvoir. Students, पता है तुम लोग को pleuvoir का सिर्फ एक ही conjugation है. It doesn't get conjugated in any other form. Yeah, खाली ill form में होगा. I cannot say I am raining, you are raining, he is raining, she is raining. खाली it is raining आएगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बराबर है? Okay, nice. Hello, Soha.
Soha Inamdar. Are you there, Soha? Yeah. You got the link through the message? Yeah, I got the link a long time back. Okay, fine. नहीं, मुझे I guess आपका एक नंबर डालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कल, because I couldn't understand there was 1 or 2 number or I don't know, I got confused. Okay. ठीक है, no problem, thank you. Let's start, students, go for it. 19th one. विव्र वर्ब है, विव्र वर्ब भी दिया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में. Where do you VIVEZ, vive, u vive vu. Where do you live? Where do you live? So Vivra word is not given. Can you give the conjugations? Vivra verb is not given. 1 second, let me just find Vivra to leave now. Vivra. 12th standard textbook. Okay, let me just find. मेरे को तो आता ही ऐसे भी, पर मैं तुमको कॉन्वीर वर्ब था, विव्र वर्ब था, सावर और कोनेत्र. It's on second chapter. Come on, second chapter for a minute. किसी को मिला तो मुझे बताना. सेकंड चैप्टर में ही है. मिला किसी को सेकंड चैप्टर में? Yes, got it. Yes. Irregular verbs. Page 58. Yes, students. मैंने तुम लोग से पहले ढूंढ लिया. लो. Students, come on, page number 58. You will get it. Vivra verb. I am assuming you guys have your textbook, okay, with you. Page 58 पे Vivra verb दिया हुआ है. वहाँ पे उसका past participle वगैरह भी दिया हुआ है. VIS, VID, VID, VIVONS, VIVEZ, VIVENT, VIVENT. Piyush. Hi, Piyush. Yes, sir. Piyush, how are you? Fine. Okay. पीयूष मिला आपको बेटा? विव्र वर्ब समझ में आ रहा है? हाँ सर. ग्रेट. चलो स्टूडेंट्स, गोइंग बैक नाउ. विव्र वर्ब के बाद नेक्स्ट न्यू फॉर्म वुआर का कॉन्जुगेशन है. टेल मी क्या आएगा? स्पेलिंग. VOYONS. Very good. Yeah, so we have VOYONS. Nice. Meaning बताओ स्टूडेंट्स. 20th one. Come on, tell me the meaning quickly. We see the beautiful birds. Yeah. Full Birds. We see the beautiful birds. Voiseau is birds. Okay. So आपको आना चाहिए सबका meaning. We see the beautiful birds. 20th one, 21. Amener verb. So ये जो amener verb है ना, ये e consonant er ending verb है. E consonant er ending verb है. अभी जो हमने पेज नंबर 15 पे सेमी रेगुलर वर्ब डिस्कस किया था ना, वो वाला है. चलो amener verb है तो AMENE, ये तो नॉर्मल आएगा, बट यहाँ पे जो फर्स्ट ये उसके ऊपर ग्राफ आएगा. Let me just do it. वो जो फर्स्ट है उसके ऊपर ग्राफ आएगा. ये एकदम इसी वर्ब की तरह है. अगर तुम लोग जाओगे पेज नंबर 15 पे, एक आशिदेर वर्ब दिया हुआ है. वो जो आशिदेर वर्ब है और ये जो अमीनेर वर्ब है वो एक जैसा ही है. Helen Sonami is basically Aminer is to, yeah, his friend obviously, but Aminer एक second. Let me just, Aminer is to lead his friend. Aminer is to bring है या तो फिर take है, to bring or to take. So Helen brings her friend or takes her friend, ऐसा कुछ. 22 तनीर वर्ब. Students, तनीर वर्ब वनीर वर्ब की तरह कौन होता है? वनीर मींस टू कम था ना, तो तनीर वर्ब भी वनीर की तरह कौन होगा? टेल मी स्पेलिंग, कोई गेस कर सकता है? TIENT. TIENT. Lapatit fil tien sap upe. The little girl holds her. Upe is basically puppet होता है ना, puppet या कुछ doll जैसा कुछ. The little girl holds her doll or puppet. 23 reservoir verb, again an important word students. Reservoir, I guess इसका, let's go for it and let's check. I guess इसका conjugation दिया हुआ है, पर आया काफी पीछे दिया हुआ है. चैप्टर नंबर 6 एक बार देखते हैं. reservoir verb दिया मैंने देखा था कहीं तो. reservoir, this is Bilan 3, I am on. So check करो चैप्टर नंबर 6 में कहीं पे reservoir verb है क्या? Sir, page 135. 135. Oh, that was quick, beta. Yeah, students, देखो page number 135. You can go on page number 135 and you can see over there. वहाँ पे reservoir verb दिया हुआ है. है ना? So again an important word. 12th standard के end तक irregular verbs पीछा नहीं छोड़ने वाले हमारे. चलो, तो coming back now.
टेल मी स्टूडेंट्स क्या आएगा 23rd का स्पेलिंग बताओ, इल फॉर्म में क्या आएगा? Recoit. रसवा, RECC से मतलब वो स होता है, RECOIT, रसवा, इल रसवा अबोकादो, मीनिंग बताओ। He He receives, received a beautiful gift. perfect, he receives a beautiful gift. He receives a beautiful gift. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इसके आगे नहीं कर रहे क्वेश्चंस, हम एक बार टेक्स्ट बुक में जा रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अगर तुम लोगों को कभी कुछ लगे, इफ आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रब द पार्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लीव इट, ओके। और मैं इसको वापस अंडू भी कर सकता हूँ बाई चांस, अगर मैंने कुछ रब भी कर दिया और आपको चाहिए कि कुछ वापस देखना, तो यू कैन लेट मी नो। Sir, are you gonna send this worksheet, no? आई एम गोइंग टू सेंड यू द वर्कशीट, बट आई हैव टू मेक सम चेंजेस ओवर हियर। मैं कल परसों भेजूंगा, आज नहीं भेजूंगा, Okay. बट मैं भेजूंगा आपको फॉर श्योर। I am looking pathetic. मैं अभी ऐसे ही मैं lectures, I had my lectures and then I came back home and I started this Zoom meeting. थोड़ा घाई हो गया आज। ठीक है, ये तो 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, 11th स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट्स देखो, तुम लोग रियलाइज कर लो, हम सिर्फ अगर प्रेजेंट टेंस भी करने बैठे हैं तो आज हम लोग सिर्फ इतना फिक्स कर लेंगे, तुम लोग प्रेजेंट टेंस वाला पार्ट अच्छे से कर लो। देखो मेरा प्लान है थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करने का, फिलहाल मैं और आगे कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें, एक दो चीजें, 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स आज हम लोग ने थोड़ा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट यू लर्न द प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन। मेरा पहले इनिशियली प्लान था कि हम लोग सिर्फ एक वो लेक्चर रखेंगे, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर ऐसा कुछ रख देंगे, बट देन आई रियलाइज इंट्रोडक्शन कितना ही कर लेंगे एक दूसरे के साथ, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनी इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली स्टार्ट। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड with the lecture also, because I guess we guys are meeting for the very first time, right? So I was excited about it. I did not know if you guys were excited or not, but I'm glad it's going all fine. तो स्टूडेंट्स हम लोग ने आज प्रेजेंट टेंस अच्छे से कर लिया कंप्लीट। तुम लोग इतना कर लेना होमवर्क में फिलहाल कि तुम लोग लर्न करके रखना। वी विल नॉट हैव अ लेक्चर टुमारो, वी विल हैव इट डे आफ्टर टुमारो फॉर श्योर, एंड द प्लान इज टू कंडक्ट 3 लेक्चर्स इन अ वीक। तो वो हम 3 लेक्चर्स इन अ वीक भी रखेंगे। मैं आप लोग को एवरी संडे को मैसेज करके बता दूंगा एग्जैक्टली नेक्स्ट 3 डेज कौन से रहेंगे। तो मोस्टली हम 3 डेज फिर कंफर्म फिक्स ही कर देंगे, और एडवांस में पता रहेगा, तो यू गाइज माइट बी प्रिपेयर कि आपको वो टाइम फ्री रखना है फॉर द लेक्चर। एंड इफ यू डोंट माइंड हम लोग संडे को भी लेक्चर रख सकते हैं, एंड संडे आफ्टरनून मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कभी संडे को लेक्चर रखूंगा, बिकॉज आई अज्यूम अगेन संडे आफ्टरनून इज अ टाइम व्हेन यू गाइज माइट नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस कॉलेज तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। फिर भी अगर कभी कुछ क्लैश हुआ टाइमिंग वगैरह तो फिर देख लेंगे, वी विल फिगर आउट अ वे आउट, ठीक है। हेलो सरीना, आर यू देयर? Yes, hello. हाउ आर यू? I'm great. How are you? I'm fine. बेटा आपको समझा सब कुछ जो हमने किया फिलहाल? हाँ समझा, सब समझा। तो आप बेटा आपको फ्रेंच ऑलरेडी आ रहा है इतना सब कुछ, कि थोड़ा सा नहीं आ रहा है, या व्हाट इज इट? इट्स ऑल गुड? एक दो वर्ड्स फॉरेन है बट समझ रहा है, ठीक है। समझ आया ना? हाँ ठीक है चलेगा। स्टूडेंट्स टाइमिंग सेम रखेंगे, 9 PM। टाइमिंग तो चेंज करने का कोई प्लान नहीं है। अगर मैं संडे को कभी लेक्चर लूंगा और मैं आफ्टरनून रखूँ तो अलग बात है, बट टाइमिंग इज शॉर्ट 9 o'clock, नॉट चेंजिंग एनी टाइम टिल बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर बोर्ड एग्जाम के पहले कभी छुट्टी वगैरह करना हुआ तो फिर देख लेंगे। लखन इज सेइंग दैट वी नीड टू मेक अ व्हाट्सएप। तुम लोग चैट पे क्या मैसेज कर रहे हो? वीडियो माइक ऑन करके बात करो ना बिंदास। चलो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग पार्ट, हम फिर कुछ इनफॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। I'll just record switch of this